So yesterday we studied about how were stupas built, inscriptions found on the railings and pillars of stupas, record donations made for buildings and decorating them. Then we studied the structure of the stupa. Later the mound of the stupas came to be elaborately carved with. I asked you meaning of this word. Anyone? You found this word? No one. Okay. So this means a shallow recess, especially one in a wall, to display a statue or other ornament. एक मोकला जैसा होता है उसको बोलते हैं. Niche. Okay. So after that we also discussed about the structure of the stupas. I Ma'am, upload. Yes. but I found the meaning is a job or a position. A job or a. You can write in the chat option because network connection is unstable. Okay. Then we studied about discovering stupas, the fate of Amravati and Sanchi. In 1796, a job. Okay. Beta, English has more than 5 million words, and each and every word has different meaning related to the situation. Meaning of words change accordingly. So here it is related to the carving. So that's why carving and sculptures, here it means that there is a recess in the wall. Okay, not job. Then we studied about the fate of Amravati and Sanchi. In 1796, a local Raja who wanted to build a temple stumbled upon the ruins of the stupa at Amravati. Some years later, a British official named Colin Mackenzie visited the site, and his point of view was different. In 1854, Walter Walter Elliot, the commissioner of Guntur, Andhra Pradesh, visited Amravati and collected several sculpture panels and took them away to Madras. They came to be called the Elliot marbles after him. He also discovered the remains of the Western Gateway and came to the conclusion that the structure of Amravati was one of the largest and most magnificent Buddhist stupas ever built. Then we started sculpture. The first point was stories in stone. At first sight, the sculpture seems to be a depict a rural scene with thatched huts and trees. However, arts historians who have carefully studied the sculpture at Sanchi identify it as a scene from the Desantra Jataka. Then we discussed about this scene, this image, symbols of worship. Art historians had to be acquired familiarity with the hagiographies of the Buddha in order to understand Buddhist culture. According to the hagiographies, the Buddha attained enlightenment while meditating under a tree. Then, in order to understand such symbol, historians have to familiarize themselves with the tradition of those who produce these works of art. If you have any problem, you can use the chat option to ask me the problem in the related topic, yesterday's topic. Or shall I begin to the next topic? 9.2. Okay. Symbols जो थे वर्शिप के, जैसे कि आर्ट हिस्टोरियंस हैड टू अक्वायर फैमिलियरिटी विद द हेगियोग्राफीज ऑफ द बुद्धा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड बुद्धिस्ट कल्चर. हेगियोग्राफीज के बारे में हमने पढ़ा था कि ये एक रिटन टेक्स्ट होते हैं जो बुद्धा के डिसाइपल्स ने लिखे थे, ठीक है, ट्रांसलेट करे थे. उनके अनुसार अगर देखा जाए तो हिस्टोरियंस जो होते हैं, आर्ट हिस्टोरियंस, उनको ये समझ में आता था, कुछ के हिसाब से ये बोला जाता था हेगियोग्राफीज़ के हिसाब से, कि
बुद्धा जो है इनको एनलाइटमेंट मिला था जब वो मेडिटेट कर रहे थे एक ट्री के नीचे, और कुछ अर्ली स्कल्पचर्स जो हैं डिड नॉट शो द बुद्धा इन ह्यूमन फॉर्म, और कुछ स्कल्पचर्स जो हैं उन्होंने ये बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में दिखाया ही नहीं, यानी कि इंसानी रूप में दिखाया ही नहीं है। इसकी बजाय उन्होंने दिखाया है एक प्रेजेंस। कैसे दिखाई है उनकी प्रेजेंस? सिम्बल्स के द्वारा दिखाई गई है, थ्रू सिम्बल्स। एम्प्टी सीट, जैसे कि खाली सीट 4.14 अगर आप देखेंगे फिगर फार राइट वर्शिपिंग द बौद्धि ट्री, ये ठीक है, यहाँ पे खाली सीट है। अगर इसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर बोला गया है कि बुद्धा जो इनको एनलाइटमेंट मिला है और वो वहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। और स्तूपा जो है कि रिप्रेजेंट करता है महापर निबाना, यानी निर्वाणा मिलना, यानी कि साल्वेशन मिलना, मोक्ष मिलना। दूसरा फ्रीक्वेंटली यूज सिंबल जो है वो है व्हील का, इस वाले इसमें आप देखेंगे 4.16 में। तो उसमें आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर बुद्धा जो है पहला अपना वो दे रहे हैं, सर्मन दे रहे हैं, यानी कि अपना उपदेश दे रहे हैं। तो यानी कि अगर कुछ जो ये हैगियोग्राफीज थी उनके अनुसार देखा जाए, उनके अकॉर्डिंगली देखा जाए, तो वो तो बोल रहे थे कि आप टेक्स्ट जो है उसके अनुसार कि भाई इन्होंने ट्री के नीचे जो है बैठ करके करा है अपना, इनको मेडिटेट जब कर रहे थे जब इनको एनलाइटमेंट मिला है। लेकिन कुछ अगर वो देखे जाएं तो उनके हिसाब से ये था कि आप अगर सिंबल्स के द्वारा वो करते थे सिम्बलाइज, यानी ह्यूमन फॉर्म में तो थे ही नहीं बुद्धा, कभी हुए ही नहीं। और इन सिंबल्स को समझना जो है वो हिस्टोरियंस के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता था एट अ टाइम। तो यहाँ पर हम वही डिस्कस कर रहे हैं। ये ऑब्वियस है कि स्कल्पचर्स कैन नॉट बी अंडरस्टूड लिटरली। स्कल्पचर्स जो है यानी कि इस तरह की जो चीज़ें, इनको समझना पूरी तरह से आसान चीज़ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, द ट्री डज नॉट स्टैंड फॉर सिंपली फॉर अ ट्री। ट्री के अब अगर यहाँ पर दिखा रखा है, जैसे कि ट्री दिखा रखा है, तो ये ट्री के लिए स्टैंड नहीं कर रहा है। यहाँ पर ये सिम्बलाइज कर रहा है कि यहाँ पर बुद्धा जो है वो बैठ करके मेडिटेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे व्हील जो है उससे भी उनके बारे में, निर्वाणा के बारे में बोला जा रहा है। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, but symbolizes an event in the life of the Buddha. In order to understand such symbols, इस तरह के symbols को समझने के लिए historians have to familiarize themselves with the traditions of those who produce these works of art. अब उनको, उन लोग जिन्होंने ये बनाए हैं सारे sculptures, उनके traditions को समझना पड़ेगा, तब जाकर के वो समझ पाएंगे कि इन्होंने क्या काम किया है। और कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. Thank you, Oh, ma'am. okay, beta, welcome. So today we have to start popular traditions. 9.3. Other sculptures at Sanchi were perhaps not directly inspired by Buddhist ideas. जो बाकी sculptures थे सांची के, वो प्रॉपर डायरेक्टली किसी बुद्धिस्ट आइडिया से इंस्पायर्ड नहीं थे, यानी कि बुद्धिस्ट आइडियाज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर रहे थे वो, या सिम्बलाइज नहीं कर रहे थे। दीज इंक्लूड ब्यूटिफुल वुमेन स्विंगिंग फ्रॉम द एज ऑफ द गेटवे, जैसे कि 4.17 में आप देखेंगे फिगर 4.17 के अंदर आपको बताया जा रहा है कि एक ब्यूटीफुल वुमेन जो है वो झूल रही हैं एक गेटवे पे, ठीक है। अब ये क्या डिपिक्ट कर रहा है, ये क्या प्रिडिक्ट कर रहा है, वो हम पढ़ेंगे। होल्डिंग ऑन टू अ ट्री, ट्री को पकड़े हुए ये झूल रही हैं। इनिशियली स्कॉलर्स वर अ बिट इंट्रीग्ड अबाउट दिस इमेज, शुरुआत में जो है स्कॉलर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंट्रीग्ड, यानी कि रोज टू क्यूरोसिटी, उनके अंदर क्यूरोसिटी आ गई थी इस इमेज के बारे में, विच सीम टू हैव लिटिल टू डू विद द रिनंसिएशन, और फिर बाद में उन्होंने इस चीज़ को फॉर्मली रिजेक्ट कर दिया। रिनंसिएशन एंड इंट्रीग्ड, yeah, here it is. However, after examining other literary traditions, they realized that it could be a representation of what is described in Sanskrit as शलाभंजिका, ठीक है। बाद में इन्होंने पढ़ा और ट्रेडिशंस को, लिटरेरी ट्रेडिशंस को समझा, तब इन्होंने ये प्रेडिक्ट किया कि हो सकता है ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर है ये किसको प्रेजेंट कर रहा हो, शालाभंजिका करके जो चीज़ होती है संस्कृत में, उस चीज़ को दिखा रहा है। According to popular belief, this was a woman whose touch caused trees to flower and bear fruit. अब शालाभंजी का क्या होता है? According to a popular belief, ये माना जाता है बहुत ही फेमस उसके बिलीफ के द्वारा कि एक वुमेन हुआ करती थी जो किसी भी ट्री या फ्लावर को टच कर देती थी,
ठीक है, ट्रीज टू फ्लावर्स एंड बेयर फ्रूट्स। तो क्या होता है, किसी भी ट्री को टच कर देती थी तो उसमें फूल आने लग जाते थे और फल भी होने लग जाते थे, मतलब उनका वो अच्छे से होने लगता था। अगर कोई सूख रहा है और कोई ट्री फूल और फल नहीं दे रहा है तो इनके टच के बाद में वो देने लग जाता था। It is likely that this was regarded as an auspicious symbol and integrated into the decoration of the stupa. इसीलिए उस चीज़ को बहुत ही पवित्र माना जाता है, पवित्र सिंबल माना जाता है, इसीलिए वो स्तूपा पे डेकोरेशन के लिए कार्व किया गया। Shalavanjika motif suggests that many people who turned to Buddhism enriched it with their own pre-Buddhist and even non-Buddhist beliefs and practices and ideas. अब शालाबंजिका का मोटिव जो है डेकोरेटिव इमेज, मोटिव इज अ डेकोरेटिव इमेज, उससे आपको ये समझ में आता है, ये सजेस्ट करता है कि लोग बाग जो बुद्धिज्म की तरफ पर फॉलो करने लग गए थे या उनके जो प्री बुद्धिस्ट यानी कि जब वो बुद्धिज्म को उन्होंने जब फॉलो नहीं किया था उससे पहले जो उनके बिलीव्स थे, ठीक है, वो और उनकी प्रैक्टिसेस या आइडियाज़ जो थे वो भी स्तूपा के ऊपर नॉलेज देने के हिसाब से स्कल्प्ट किए गए हैं और कार्व किए गए हैं। जो बुद्धिज्म को टर्न कर गए थे वो भी और जो नॉन बुद्धिज्म थे, नॉन बुद्धिस्ट थे, वो भी। Some of the recurrent motifs in the sculpture at Sanchi were evidently derived from these traditions. कुछ अगर आप ये decorations देखेंगे, motifs देखेंगे sculpture पर सांची के, तो आपको इस तरह की traditions के बारे में proof मिलेगा। There are other images as well. वहाँ पर और बाकी images भी हैं. For instance, some of the finest depictions of animals are found there. अब वहाँ पर कुछ बहुत ही अच्छी depictions दी गई हैं, बनाए गए हैं animals के। These animals include elephants, horses, monkeys and cattle. अब इन animals के अंदर कौन कौन से animals का description दिया गया है? Elephant, horses, monkeys और cattle. While Jatakas contain several animal stories that are depicted at Sanchi, it is likely that many of these animals were carved to create lively scenes to draw viewers. अब क्या हुआ था, जटाकास के अंदर कई सारे एनिमल स्टोरीज जो हैं वो सांची पे दिखाई गई हैं, जिसके अंदर उनको कार्व किया गया है एक लाइवली सीन को दिखाने के लिए, जिससे एक उनका आपको पूरा सिचुएशन को समझ आए कि ये अब एनिमल क्या कर रहा है, इसने क्या करना है, मतलब एक आपको एक व्यू मिल जाए, आप अपने आप से अपने देखने वाला जो है अपने सामने एक इमेजिनेशन उसकी चलने लग जाए, इस तरीके से उनको कार्व किया गया है। ऑल्सो एनिमल्स वर ऑफन यूज्ड एज सिंबल्स ऑफ ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, और एनिमल्स को जो है वो ह्यूमन एट्रीब्यूट्स का सिंबल के तौर पर भी दिखाया गया है। कैसे? जैसे कि है एलिफेंट, फॉर एग्जाम्पल, वर डिपिक्टेड टू सिग्निफाई स्ट्रेंथ एंड विजडम। एन एलिफेंट एट सांची, उसमें ये दिखाया गया है कि कैसे स्ट्रेंथ है इनमें और विजडम यानी कि ये बुद्धिजीवी होते हैं, यानी ये इंटेलेक्चुअल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। देन अदर ये गजालक्ष्मी के बारे में पढ़ेंगे अभी हम। Another motif is that of a woman surrounded by lotuses and elephants. अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वुमेन जो है ये एलिफेंट्स और लोटसेस से सराउंडेड है चारों तरफ से। इसके बारे में क्या डिस्क्राइब किया गया है? Which seem to be sprinkling water on her as if performing an abhisheka or consecration. ठीक है, अब यहाँ पर ये इनको चारों तरफ से ऐसे घेर रखा है और बोला जा रहा है, बताया जा रहा है कि जैसे ये इनके ऊपर छिड़काव कर रहे हों पानी का, जैसे कि ये अभिषेक कर रहे हों। आपने सुनी होगी ये टर्म, और इसका इंग्लिश वो है कॉन्सेक्रेशन, एसोसिएशन विद द सेक्रेड, यानी कोई पवित्र चीज़ होती है तो हम उसका जल अभिषेक करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे इनका जल अभिषेक हो रहा है। While some historians identify the figure as Maya, अब कुछ historians जो हैं उनका अलग ही थ्योरी थी इस गजालक्ष्मी को लेकर के, इस स्कल्पचर को लेकर के। उनका मानना था that she is Maya, ठीक है, mother of Buddha, and others identify her with the popular goddess Gajalakshmi literally. कुछ ने बोला कि ये माया है जो कि मदर थी बुद्धा की, कुछ ने बोला कि ये पॉपुलर गॉडेस यानी देवी हैं गजालक्ष्मी, द गॉडेस ऑफ गुड फॉर्चून। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, सो देन उसके बाद में गजालक्ष्मी बोली गई है मदर पॉपुलर गॉडेस, जिनके लिए बहुत ही माना जाता है कि वो बहुत ही गुड फॉर्चून, अच्छा फॉर्चून लेके आती हैं। हु इज़ एसोसिएटेड विद एलिफेंट्स, जिनका जो है जुड़ाव जो है वो एलिफेंट से भी है। तो एक ही चीज़ के तीन अलग
उन्होंने थ्योरीज दे रखी हैं, सब में अलग अलग जो ट्रेडिशंस पढ़े होंगे उनसे रिलेट किया गया है. So it is also possible that devotees who saw these sculptures identified the figure with both Maya and Gajalakshmi. तो ये भी पॉसिबल है कि जो डिवोटीज हुआ करते हैं जिन्होंने ये स्कल्पचर्स देखा होगा उन्होंने माया या गजालक्ष्मी दोनों से ही इनको कोरिलेट किया होगा. Then consider to the serpent which is found on the several pillars. 421 serpent at Sanchi means, you know the meaning of serpent, Saap, which is found on several pillars. This motif seems to be derived from popular traditions which were not always recorded in text, and interestingly, one of the earliest modern art historians, James Ferguson, considered Sanchi to be a center of tree and serpent worship. अब यहाँ पे बोला गया है जो ये सर्पेंट जो होता है ये अधिकतर कई सारे सेवरल पिलर्स पे आपको दिख जाएगा. इस मोटिव डेकोरेशन का मीनिंग था कि पॉपुलर ट्रेडिशन है, निकाला गया है पॉपुलर ट्रेडिशन से, जो हमेशा रिकॉर्ड नहीं हुआ है, कभी टेक्स्ट में लिखा नहीं गया है. इंटरेस्टिंगली जो अर्लीस्ट मॉडर्न आर्ट हिस्टोरियन थे जेम्स फर्गूसन, उनका मानना था कि सांची जो है वो सेंटर है ट्री और सर्पेंट वर्शिप का, यानी कि यहाँ पर पेड़ और सांप की जो है वो पूजा की जाती है. ही वॉज नॉट फेमिलियर विद द बुद्धिस्ट लिटरेचर, और वो फेमिलियर नहीं थे बुद्धिस्ट लिटरेचर से, ठीक है. मोस्ट ऑफ विच हैड नॉट येट बीन ट्रांसलेटेड, जिनमें से अभी तक काफ़ी अभी तक काफ़ी चीज़ें जो है ट्रांसलेट नहीं की गई हैं. एंड अराइव्ड एट दिस कंक्लूजन बाय स्टडिंग ओनली द इमेजेस ऑफ ऑन देयर ओन. और वो खुद से जेम्स फर्गूसन जो है वो कंक्लूजन पे कैसे पहुंच गए, उन्होंने कोई पढ़ाई तो करी नहीं थी, किसी ट्रेडिशन को भी समझा नहीं था, और वो अपने आप से ही इन इमेजेस को देखने के बाद में कंक्लूजन पे आ गए कि ये जगह है वर्शिप की. किन के वर्शिप की? ट्रीज और सर्पेंट वर्शिप की. एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक जो भी हमने पढ़ा है? Okay, no problem. New religious tradition. The development of Mahayana Buddhism. The development of Mahayana Buddhism by the 1st century CE Common Era, there is evidence of changes in Buddhist ideas and practices. फर्स्ट सेंचुरी के अंदर आपने यहाँ पर आपको एविडेंस मिलेंगे जिसमें आप ये देखेंगे कि आइडियाज़ और प्रैक्टिसेस जो हैं उनमें बुद्धिस्ट आइडियाज़ और प्रैक्टिसेस जो हैं उनमें चेंजेस आए हैं. अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग्स हैड गिवन ग्रेट इंपॉर्टेंस टू सेल्फ एफर्ट इन अचीविंग निर्वाणा, यानी कि निर्वाणा मोक्ष. यहाँ पर बोला गया है पहले की बुद्धिस्ट टीचिंग्स में आपको इम्पोर्टेंस दी जाती थी कि आप खुद के एफर्ट्स लगा करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, salvation. You can achieve salvation by doing your own efforts. Besides, the Buddha was regarded as a human being who attained enlightenment and nirvana through his own efforts. और इसके अलावा अगर बुद्धा का देखा जाए तो वो ह्यूमन बीइंग के तौर पे जो है उनको एनलाइटमेंट मिला था और निर्वाणा मिला था खुद के एफर्ट्स लगा के. हाउएवर, ग्रेजुअली द आइडिया ऑफ अ सेवियर इमर्ज्ड. एक सेवियर इमर्ज यानी कि एक आइडिया आया था जिसमें आपको अपनी एक ऐसा जिसमें आपको बहुत हेल्प मिले, वो था इट वॉज बिलीव दैट ही वॉज द वन हु कुड इंश्योर सल्वेशन. अब इनमें यहाँ पर ये आया था कि जो बुद्धा है वो ही आपको सल्वेशन जो है वो दिला सकते हैं. साइमल्टेनियसली द कंसेप्ट ऑफ बौद्धसिता ऑल्सो डेवलप. बौद्धसिता का भी एक आइडिया जो है वो कंसेप्ट जो है डेवलप हो रहा था. Bodhisattvas were perceived as deeply compassionate beings. Wait a minute. Compassionate beings who accumulated merit through their efforts but used this not to attain nirvana and thereby abandon the world but to help other. अब यहाँ पर बोधिसत्व जो है उन्होंने भी एनलाइटमेंट मिल गया था, लेकिन उन्होंने अपने मेरिट्स को अपने सारी पॉजिटिव चीज़ें या जो भी उनके पास पावर्स थी उसको उन्होंने निभाना अटेन करने के लिए या वर्ल्ड को अबैंडन छोड़ देने के लिए नहीं यूज़ किया, बल्कि उन्होंने यूज़ किए ये सारी पावर्स दूसरों की मदद करने के लिए. कि एनलाइटमेंट मिलने के बाद में आप जब आपको पूरी तरह से आपका सब पूरी तरह से आप एकदम परफेक्ट हो जाते हो, ठीक है, तो उन्होंने ये नहीं करा कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया, मोक्ष प्राप्त कर लिया या उन्होंने वर्ल्ड को छोड़ दिया और एक जगह पे जाके सॉलिट्यूड में बैठ गए. नहीं, उन्होंने दूसरों की मदद करी बौद्ध सिद्धांत ने.
The worship of images of the Buddha and Bodhisattvas became an important part of this tradition. अब यहाँ पर क्या हो रहा था, वर्शिप करने के लिए इनके जो इमेजेस थी उनको क्या माना जा रहा था, एक ट्रेडिशन बन गया था. This new way of thinking was called Mahayana, literally the great vehicle. अब ये जो उनकी नई सोच थी इसको ही वो लोग मान रहे थे महायाना, ठीक है, और इसी को माना जा रहा था. निबाना मीन्स निर्वाणा, यानी मोक्ष, यानी साल्वेशन. आप जब पूरा सब कुछ ये त्याग देते हो ना, ऑल ओवर सारी आपके वर्ल्डली डिज़ायर्स और प्रॉब्लम्स को, और आप भगवान की उसमें ही लग जाते हो, भक्ति में, और आप कोशिश करते हो या ध्यान लगाने के लिए उस चीज़ से आपको इन सारी वर्ल्डली डिज़ायर्स और उससे छुट्टी मिल जाती है. दैट्स व्हाट वी कॉल निबाना, मोक्ष. देन those who adopted those beliefs described the older tradition as Hinayana और द लेसर व्हीकल. अब जिन्होंने अडॉप्ट कर लिए थे ये बिलीव्स, इन्होंने ओल्डर ट्रेडिशन, जो पहले का ट्रेडिशन था, उसको उन्होंने बोला हिनायाना. इसको तो बोलते थे महायाना जो नई थिंकिंग थी, और जो पुरानी थी इसको बोलते हैं हिनायाना और लेसर व्हीकल. और अभी जो नई थिंकिंग थी महायाना, उसको बोलते थे ग्रेटर व्हीकल. देन द ग्रोथ ऑफ पौराणिक हिंदुज्म. अभी तक आपको इसमें और कोई प्रॉब्लम है? ये रह क्या? No, ma'am. No, ma'am. Okay. Hinayana No, or ma'am. Theravada. Supporters of Mahayana regarded other Buddhists as followers of Hinayana. Supporters जो थे महायाना के, ठीक है, ये दूसरे बुद्धिस्ट थे जो फॉलोअर्स थे हिनायाना के, उनको नाम दिया गया है हिनायाना या थेरावादा. However, followers of the older tradition described themselves as Theravadins. जो फॉलोअर्स जो थे, जो पुराना उसको फॉलो कर रहे थे हिनायाना को, वो अपने आप को डिस्क्राइब देमसेल्फ, खुद को क्या डिस्क्राइब करते थे? थेरावादीन्स भी बोलते थे. दैट इज, इसका मतलब था दोज हु फॉलोड द पाथ ऑफ ओल्ड रिस्पेक्टेड टीचर्स, द थेरास. जिनका मानना था, वो अपने आप को डिस्क्राइब करते थे थेरावादीन्स, और इसका मतलब था कि वो जो लोग फॉलो करते हैं पुराना तरीका, जिसमें वो अपने रिस्पेक्टेड टीचर्स को फॉलो करते हैं, यानी कि थेरास को. ठीक है, टीचर्स के लिए बोला गया है थेरास. देन the growth of Puranic Hinduism. The notion of a savior was not unique to Buddhism. अब ये जो savior वाली चीज़ आई थी जिसमें उन्होंने सॉल्व किया था हिनायाना और महायाना को, वो एक ज़्यादा यूनिक नहीं थी बुद्धिज्म के अंदर. We find similar ideas were being developed in different ways within traditions that we now consider part of Hinduism. अब हम देखेंगे कि हमने सिमिलर आइडियाज़ जो हैं वो डेवलप हुए थे डिफरेंट ट्रेडिशंस के अंदर. अलग अलग ट्रेडिशंस के अंदर भी सिमिलर आइडियाज़ जो हैं वो डेवलप हो रहे थे, जिनको हम बोलते हैं अब हिस्सा किसका? हिंदुज़म का. दीज इंक्लूडेड वैष्णविज्म, अ फॉर्म ऑफ हिंदुज़म विदिन विच विष्णु वॉज वर्शिप्ड एज द प्रिंसिपल डाइटी. अब इनके अंदर हमें मिलेंगे, पहला है हमारा वैष्णविज्म, ठीक है, जिसके अंदर हमने विष्णु भगवान की पूजा करते हैं और वही प्रिंसिपल डाइटी में सबसे मेन वही भगवान है. फिर है शैविज्म, अ ट्रेडिशन विदिन विच शिवा वॉज रिगार्डेड एज द चीफ गॉड. और शैविज्म के अंदर शिवा जो हैं उनको चीफ गॉड की उपाधि दी गई है. इन विच देयर वॉज ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन द वर्शिप ऑफ अ चोजन डाइटी. इस तरह के ट्रेडिशंस में से जिसको भी वो चूज़ कर लेते थे उसी की वो पूजा करते थे. इन सच वर्शिप द बॉन्ड बिटवीन द डिवोटी एंड द गॉड वॉज विजुअलाइज्ड एज वन ऑफ लव एंड डिवोशन और भक्ति. इस तरह की वर्शिप के अंदर जिसमें भी आपने चूज़ कर लिया, और भक्त और क्या कहते हैं डाइटी और डिवोटी के बीच में जो रिलेशनशिप था, जो बॉन्ड था, वो माना जाता था प्रेम का और भक्ति का. ठीक है. So that's all for today. We only have 4 minutes left. If you have any problem, you can ask me.